स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का एक विशेष दिन है, यूएन साइकोलॉजी डे पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी को, ऑनलाइन पैनल डिस्कशन को रखा है और इस कार्यक्रम को फॉर्मली शुरू करने के पहले मैं अपनी एमए फाइनल की छात्रा खुशी यादव को बुलाना चाहूंगी सरस्वती वंदना के लिए। खुशी यादव, आप सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। खुशी यादव, क्या आप सुन पा रही हैं? उदो, क्या खुशी यादव हम लोगों से कनेक्टेड है? मुझे लगता है शायद किसी कारण से वो हम लोगों से नहीं जुड़ सकी है। यस खुशी, सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर जगति देवहि सदा वन्दिताम् मातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू खुशी। और अब इस आयोजन को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ पीपीएन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अनूप कुमार सर का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर सके। आज यह विशेष दिन इसलिए भी विशेष बन जाता है कि मनोविज्ञान विभाग की तरफ से हम लोगों ने सर के सामने निवेदन किया कि क्यों ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मनोदर्पण के एजेस में हम लोग हैप्पीनेस और वेलबींग सेंटर को खोले जाने का कार्य करें, जिस पर कि सर ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। और आज वो दिन आ गया है कि इस अवसर पर इस पैनल डिस्कशन के साथ साथ इसको भी खोले जाने और उद्घाटन करने का मैं सर से निवेदन करूंगी। सर को मैं बुलाना चाहूंगी कि हमारे आए हुए अतिथियों आदरणीय प्रोफेसर ब्रजभूषण सर, प्रोफेसर मधुरमा प्रधान मैम एंड प्रोफेसर अनुभूति दुबे मैम, मनोविज्ञान विभाग की आप विभागाध्यक्षा हैं गोरखपुर में डीडीयू यूनिवर्सिटी। तो सर, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बुलाना चाहूंगी कि आप हमारे अतिथियों का स्वागत करें और इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। Thank you, Dr. Abaji. Am I audible and visible? Yes, sir. Okay. So, indeed, it's a matter of pride, privilege, and honor for me that I am here to welcome this grand, great, and important psychologists who are on the panel, like Professor Brajbhushan ji from IIT Kanpur, Professor Madhurima Pradhan ji from University of Lucknow, and Professor Anubhuti Dubey ji from DDU University Gorakhpur, and also the senior most psychologist of this state, I think so. And he has been guardian of this college since so many decades, Professor N.K. Saxena Sahab, and some other colleagues of mine in this college, from the different faculty and researcher and the students. So really it's a matter of exaltation and happiness for me that we are going on to organize this panel discussion on the occasion of UN Psychology Day. UN Psychology Day, it's an important day because UN is celebrating this day. It means there's a relevance of psychology at large across the globe. We know that the psychological interventions is important in every aspect of the life. But if we are talking about the natural catastrophe like drought, flood,
every natural calamity, and after effect of calamities left so many emotional imbalances on the part of people, even the living beings apart from the people. When we are discussing over here, we must know that mental health and well-being both are equally important to achieve higher goal in the life for the people. So on this occasion, if we are going on to discuss about the psychosocial effect of the natural catastrophe like drought, flood, uh, cyclone, etc., and after effect, even the displacements which happens by these calamities, that is also important, where people leave their cultural roots. Even the cultural genocides have been happened because of displacement every corner of the country. So it should be discussed by the psychologist. What are the crises of climate changes across the globe, particularly in India, and how it could be addressed by the psychological interventions on this panel. So I am very happy that we have the great panel, the people from the University of Lucknow, DD University Gorakhpur and IIT Kanpur, and I hope that the things will be better and the result will be very much concerns with the planning, and the issues which will be come out from this discussion will be the matter for the state as well, because I am also happy to announce that on this day, the BPN College Kanpur is the first college across Uttar Pradesh, even the University of CSM University, that we are opening Happiness and Wellbeing Center at our college, because Ministry of Education, Government of India has taken initiative of Manodarpan, and in that basis, we are going on to open Happiness Wellbeing Center and say that it is Antarman Center. We will discuss, we will address, rectify the issues concerned the students, with the parents, and the faculties, even the inside of the campus and outside of the campus. That means at large of the society. So I am happy, and I would like to congratulate Professor Avan, Head of Department of Psychology, that she has initiated that this endeavor should be commended, and I hope that things will be better. And from my side, I would like to congratulate you and the department, the organizing team, that things and the way you are going to organize this panel discussion and plan to open the center for department will be a remarkable initiative in the history of this college. So, congratulations, Professor Abbas and the team, the panel. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू Over सर, to Abbas ji. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही मेरा ऐसा मानना है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पीपीएन महाविद्यालय नई ऊंचाइयों को छुएगा, नए आयाम को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर ब्रजभूषण सर का संक्षिप्त परिचय पढ़ना चाहूंगी। हालांकि ब्रजभूषण सर को पूरे नेशन वाइड और इंटरनेशनली सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों की प्रेरणा के लिए मुझे लगता है कि आपका एक संक्षिप्त परिचय जरूरी है। आपने अपना मास्टर्स बीएचयू से किया, पीएचडी ब्राब यूनिवर्सिटी से किया। आप 2015 से प्रोफेसर पद पर शोभायमान हैं। वर्तमान में आप विभागा अध्यक्ष हैं एचएसएस डिपार्टमेंट। देश विदेश में आपके विजिटिंग लेक्चर्स हो चुके हैं। आपका जो एरिया है वो कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी, कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रॉमा साइकोलॉजी है। बहुत अभी कुछ ही दिनों की बात है, प्रोफेसर ब्रजभूषण सर अखबार की सुर्खियों में छाए हुए थे। निश्चित ही बहुत उपयोगी टूल्स का आपने निर्माण किया है। आपने कई ऐसे असेसमेंट टूल डेवलप किए हैं जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिसमें से एक है BBIT, ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, Indian Affective Picture Database, Video Based Projective Test of Personality, Refugee Trauma Experience Inventory, Indian Dataset of Basic Emotion, Broad Autism Phenotype Questionnaire, Brief Multidimensional Measure of Religiosity and Spirituality, Proactive Coping Inventory and AACD। तो इस तरह के कुछ आपने टेस्ट का निर्माण किया है जो कि हमारे डिस्लेक्सिक और डिस्ग्राफिया के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, खासतौर से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी।
बहुत काम किया है। कई सारी बुक्स भी आपने पब्लिश की हैं, कई सारे बुक चैप्टर्स में भी आपका योगदान रहा है। आपने अब तक 50 पब्लिश्ड पेपर हैं जो कि बहुत ही सम्मानित जर्नल में छपे हुए हैं, जिसमें एक पेपर का जिक्र मैं करना चाहूंगी जो अभी फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में छपा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंड ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में आपके इनवाइटेड लेक्चर्स हो चुके हैं। हाल ही में आपके बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए हैं, ब्लॉग्स आप लिख रहे हैं जो कि आम जनता तक संप्रेषित करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। इनवाइटेड लेक्चर 62, चेयरिंग द सेशंस भी कई सारे हैं, 10 हैं लगभग। कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स आपने बहुत सारे लिए और उसे कंप्लीट किए। नॉलेज डिसमिनेशन NPTEL 5 कोर्सेज आपने डेवलप किए हैं। मूक में 9 कोर्सेज आपने बनाए हैं। स्वयं प्रभा पर आपके बहुत से लेक्चर अपलोडेड हैं। आपने IIT कानपुर में कॉन्फ्रेंस एंड कई सारी वर्कशॉप कंडक्ट की हैं। आपके जो PhD सुपरविजन है वो 6 डॉक्टरल करा चुके हैं, पोस्ट डॉक्टरल 2 करा चुके हैं, और रेडियो में भी आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री हैं जो इस बात को पूरी तरीके से साबित करते हैं कि आप लगातार मनोविज्ञान की सेवा विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए आप लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। अधिक समय ना लेते हुए मैं इस बात को पुनः कहना चाहूंगी कि हमारा विभाग, कॉलेज गौरवान्वित महसूस कर रहा है हम आपको अपने बीच पा करके, और अब मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। Thank you, Abaji. Professor Saxena, Principal Sir, all my colleagues. अबाजी, मैं पहले परमिशन लूँ आपसे कि इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है या मिक्स लैंग्वेज में बोलना है? सर अगर मिक्स बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं मिक्स करके ही बोलूँगा, ज़्यादातर हिंदी ही इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक मौका दिया, लेकिन साथ में उतना भी साधुवाद नहीं क्योंकि आपने एक डिफिकल्ट टॉपिक पर बोलने के लिए कहा, और मुझे एक बार पढ़ना पड़ा खुद कि आखिर में बोलूँगा क्या, है ना। प्रबुद्ध लोगों के बीच में बोलना बहुत समस्या है, और ख़ास तौर से जलवायु परिवर्तन जिस पर हर किसी की अपनी राय है, और मोस्टली वो पॉलिसी रिलेटेड राय है ना। तो पॉलिसी ओरिएंटेड चीज़ में अगर उसको हम मनोवैज्ञानिक अंदाज से देखते हैं तो वो ऑफ कोर्स एक चैलेंज है। अब्बा जी ने मुझे कहा था कि 15 मिनट में बात को समेटनी है, तो मैंने अपना स्टॉप वॉच चालू कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट में अपनी बात संपन्न कर दूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बार लेकर चलूँगा, अगर आप 1980 के मध्य की तरफ चले हैं ना, जब क्लाइमेट रिसर्च जो है ये काफ़ी ज़ोर शोर से सामने आया, और जो क्लाइमेट रिसर्चर्स थे उन लोगों ने ये कहा कि फ्लोरोकार्बन्स जो हैं CFCs, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओजोन परत को वो क्षति पहुंचा रहे हैं। और उस स्टडी में यह भी साइंटिस्ट लोगों ने क्लेम किया कि हम जो हेयर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं और जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा है, ये 2 खास तौर से जिम्मेदार हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, और ये हमारे वायुमंडल में घुल मिल करके ओजोन को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो सबसे खास बात थी इस पूरे प्रोसेस में, वे लोग, आप लोगों में जो कंज्यूमर बिहेवियर, परचेज बिहेवियर, इस तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं, उस समय के यूरोप में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला कि हेयर स्प्रे का सेल जो है वो काफ़ी गिर गया नीचे। रेफ्रिजरेशन उनकी समस्या है, उसका तो नहीं गिरा, लेकिन हेयर स्प्रे का सेल गिर गया। और तब साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जो साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यह पॉसिबल है और आम जनता को ये समझाया जा सकता है। क्योंकि अब तक क्लोज कमरों में, है ना, कई विद्वान बैठेंगे और वही इस पर चर्चा करेंगे, या राजनेता बैठेंगे और वो चर्चा करेंगे। हम लोग बस यही देखते आ रहे थे। ये पहला मौका था 1980 के बीच का समय का, जब लोगों की खरीदारी से संबंधित व्यवहार में एक बदलाव देखा गया। और यूरोप में खरीदारी के व्यवहार में जब परिवर्तन आया, तो एक दूसरी चीज जो हुई वो ये कि जो नीति निर्माता थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, मोस्टली पॉलिटिशियंस होंगे ये, तो नीति निर्माताओं ने भी फिर नए नए नियम बनाने शुरू कर दिए। तो इससे यह भी पता चला कि अगर जनता एक खास तरह का एक रुख अख्तियार करती है, तो नीति निर्माताओं के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, और फिर वो
जो भी अनुकूल नीतियां हैं पर्यावरण से संबंधित वो बनाना शुरू करेंगे। हम श्योर हैं कि आप सारे लोग जो डिस्कशंस होते हैं वर्ल्ड फोरम में आप पढ़ते होंगे। कई बार आप देखते होंगे कि फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, जो हमारे यहाँ जैसे हम लोग बायो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो कोल को लेकर के और हिंदुस्तान के अंदर जो किसान लोग पराली जलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोफ्यूल्स और लोकल स्तर पर पराली, ये दो एक समस्या है जो आप देखेंगे कि आंतरिक तरीके से जब किसान और उनसे जुड़े लोग देखते हैं वो उसको अलग तरह से एनालाइज करते हैं, और जब बाहरी जो यूरोपियन और अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल के बारे में चर्चा करते हैं और वो भारत को कहते हैं कि आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कीजिए, तो ये समझने की चीज है कि जो 1980 के दशक में दिखा था कि एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आप वैज्ञानिक जानकारी को जो बहुत जटिल है प्रभावी ढंग से आप जनता तक पहुंचा सकते हैं, वो चीज शायद अभी भी हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। और हमें लगता है कि वे लोग जो सोशल साइकोलॉजी के एरिया में काम करते हैं, सोशल कॉग्निशन के एरिया में काम करते हैं, उनके लिए बहुत फर्टाइल एरिया है। दूसरा ये कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो विज्ञान है ये पूरी तरह से स्थापित है। लोगों को पता है कि फिजिकली क्या चेंजेस आते हैं, क्या केमिकल चेंजेस हैं, इन्वायरमेंट पे कैसे और क्यों असर पड़ रहा है, डिप्लेशन किन किन स्तरों पर हो रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है मेरी नज़र में वो ये कि एक व्यक्ति को जो कि कुछ परसेंटेज उसका कंट्रीब्यूशन है इसमें जलवायु परिवर्तन में, उस व्यक्ति को विश्वास में कैसे लिया जाए कि उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है इसमें। और इसीलिए जो बोलते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है कि एक्यूरेट साइंस आउटरीच, है ना, बहुत सटीक तरीके से वैज्ञानिक जानकारी को आउटरीच के माध्यम से, मतलब आप रिसर्च आर्टिकल्स आप लिखिए वो एक अलग चीज है, लेकिन आप अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, उन तमाम माध्यम से जिनसे कि आम आदमी जुड़ता है, उन माध्यमों से आप सटीक वैज्ञानिक जानकारी जनता को दें, और तब लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन देखा जा सकता है। हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो साइंस आउटरीच प्रोग्राम है, अगर आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, ये लोग इस तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं, लेकिन इसमें सोशल साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और हमें लगता है कि अगर आप सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों को इसमें अगर आप इंक्लूड करेंगे, उनको भी आप समाहित करेंगे, तब ये जो सटीक वैज्ञानिक जानकारी है ये आउटरीच के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी एक खास बात और है कि हम लोग जो चर्चा करते हैं ना होप और रिजिलियंस के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे लगता है कि इसको अगर आप विश्वास और व्यवहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हम किन चीजों पर विश्वास करेंगे, हम भरोसा किस पे करेंगे, कि अमेरिका हमसे कहे कि इंडिया और चाइना का कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, या हम ये कहें कि आपने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, अब हम अपने इंडिजिनस टेक्निक से कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, और इतने दशकों से जो आपने इसका इस्तेमाल किया है और आपकी वजह से ओजोन लेयर में जो परिवर्तन आया उस पर कोई चर्चा नहीं है ना। अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर लें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने को, तो फिर हमारी जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी। तो हमें लगता है कि विश्वास कैसे जीता जाए, दोनों आम जनता का, जिनकी वजह से छोटे छोटे परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन होगा, और पॉलिसी मेकर्स का, जिनकी वजह से बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं, और फिर व्यवहारों में कैसे परिवर्तन लाया जाए। और याद रखिए कि ये इंडिविजुअल का व्यवहार नहीं है ना, ये ग्रुप का व्यवहार है ना। एज अ ग्रुप हम क्या व्यवहार करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, और उससे ग्लोबल वार्मिंग पर क्या असर पड़ता है। एक पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, रटबाउंड यूनिवर्सिटी है नीदरलैंड की, वहाँ के लीड ऑथर ने इसको पब्लिश किया, और उन्होंने कहा कि लोगों को, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग जो हैं वो बायो जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं ना, बायोमेडिकल साइंटिस्ट जो हैं, जैव चिकित्सा वैज्ञानिक जो हैं, उनकी तुलना में जलवायु वैज्ञानिकों पर कम भरोसा करते हैं। इसका मतलब हो गया कि आप चाहे जितना भी रिसर्च कर लें, आप जो बात साइंटिफिकली प्रूवन
फैक्ट के साथ बता रहे हैं, जनता आप पर विश्वास नहीं करती, आपकी तुलना में बायोमेडिकल साइंटिस्ट पर ज्यादा भरोसा करती है। और इसलिए मैं कह रहा था कि जो लोगों का भरोसा कैसे जीतना है, यह एक ऐसी चीज है जिसमें कि दिमाग को बदलना, सोच को बदलना, व्यवहार को प्रभावित करना, ये चीजें मनोवैज्ञानिक बहुत बखूबी निभा सकते हैं। खासतौर से जब आप इसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में देखते हैं, इंटर ग्रुप रिलेशन के रूप में देखते हैं, इंट्रा ग्रुप प्रोसेसेस के रूप में देखते हैं, सोशल कॉग्निशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज को, तो यह भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वे सारे लोग जो क्लिनिकल साइड में जिनकी रुचि है, बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे जो बताते हैं कि जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है, इसमें इजाफा होता जा रहा है और स्वास्थ्य पर इसका सीधा सीधा प्रभाव है, दोनों शारीरिक स्वास्थ्य पर भी और मानसिक स्वास्थ्य पर भी। जैसे आप अगर बहुत इंटेंसली अगर आप सर्च करें, पबमेड जो मेडिकल पब्लिकेशन का जो सर्च इंजन है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रत्यक्ष गर्मी, जैसे अभी हम लोग 42-43 डिग्री टेम्परेचर में बाहर निकल रहे हैं अपने काम को निष्पादित करने के लिए, तो जब आप प्रत्यक्ष गर्मी के संपर्क में आते हैं तब भी जो आपका मेंटल हेल्थ है, जो आपकी साइकियाट्रिक कंडीशन है, उसमें परिवर्तन आता है। जब मौसम अपने चरम पर हो, गर्मी चरम पर हो, ठंड चरम पर हो, बारिश कभी कभी चरम पर हो जाए, वायु प्रदूषण बढ़ जाए, कानपुर यूपी का टॉप सिटी होता है वायु प्रदूषण में, और पूरे नेशन में भी हम लोग कभी कभी चौथे पांचवें नंबर पर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो स्थानीय खाद्य उत्पादन है, यह प्रभावित हो रहा है, भोजन संबंधी व्यवहार जो है वो प्रभावित हो रहा है। और अगर आप बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस को अगर आप देखें तो जो वेक्टर बॉर्न जो डिजीज है ना, पानी से संबंधित जो हमारी बीमारियां हैं, तो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। और सबसे अमेजिंग चीज, जो इन सारी चीज, गर्मी से लेकर के वेक्टर बॉर्न डिजीज तक जो सारी चीजें हैं, वो हमारे मानसिक तनाव का कारण बन रही है। और व्यापक पैमाने पर अगर हमको इस कारण को के रोकथाम के लिए जाना है, या व्यापक पैमाने पर इसको एलिमिनेट करना है, या लोगों को इस चेंजेस के प्रति अडेप्ट कराना है, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर, है ना, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामुदायिक स्तर पर, दोनों स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि लोगों के बीच में एक होप रहे फॉर अ बेटर फ्यूचर, है ना, और लोग रिजिलियंट बने टू एडवर्सिटी, जो करंट एडवर्सिटी है ना। शुरुआत में एक मैम पूछ रही थी कि होप और रेजिलियंस का कैसे तालमेल आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो होप जो है वो बेटर फ्यूचर के लिए है, कि भले हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, भले ओजोन की समस्या है, भले हमारा अंटार्कटिका में डिप्लीशन हो रहा है आइसबर्ग का, लेकिन एक होप जगा के रखना है। और दूसरा कि जो भी एडवर्सिटीज हैं, तमाम सारी एडवर्सिटीज हैं, तो उसके प्रति हमें समाज को और व्यक्ति को, दोनों को रिजिलियंट बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें हैं जिसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक एक सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उस पर डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने उस पर टिप्पणी की कि जो हमारा फूड पैटर्न है और जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, इन दोनों की वजह से माइग्रेशन पैटर्न भी बढ़ गया है, और वाइड स्केल माइग्रेशन है, गांव से शहरों की तरफ, कस्बों की तरफ। और अगर आप नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे देखिए, तो उसमें भी आपको एक बहुत अमेजिंग चीज मिलेगा कि ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, इनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इनकी ज्यादा इश्यूज। तो हम एक छोटे से गांव से हम कस्बे में आते हैं, कस्बे से एक बड़े शहर में जाते हैं, किसी महानगर में जाते हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। और उन कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में एक होप को बनाए रखना, हमको उन एडवर्सिटीज के प्रति, तमाम एडवर्सिटीज के प्रति, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, एक रिजिलियंस डेवलप करना, और जो एक एक्यूरेट साइंस का जो आउटरीच है उसमें कंट्रीब्यूट करना। मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट अपना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और हमें लगता है कि साइकोलॉजिस्ट को आदत है ज्यादातर जगहों पर अकेले काम करने की, तो हमें लगता है कि ऐसी गलती न करना बेहतर है मेरे समझ से। सोशल वर्क के लोग हैं, सोशियोलॉजी के लोग हैं, बहुत सारी दूसरी विधाएं हैं, वे लोग जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं लोगों के, है ना। हम लोग लैब में भले जो बड़ी बातें कर लें, क्लास में जो बड़ी बातें कर लें, हम लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो कम्युनिटी के टच में रहते हैं।
तो वे सारी विधाएं जिसमें जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़कर अगर काम करें तो हमें लगता है हम बहुत सक्सेसफुली काम करेंगे। मुझे लगता है आभा जी, मैं आपका अगर 2 मिनट बचा दूं तो दूसरे वक्ताओं को ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा इस पर टिप्पणी करने का। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग इश्यूज हम लोगों के सामने रखे कि किस तरह से हम और विधाओं के वैज्ञानिकों को, सामाजिक वैज्ञानिकों को, सोशियोलॉजी है और भी बहुत से लोग हैं जिनको जो डायरेक्ट कम्युनिटी से नाता रखते हैं और उन रिसर्चेस को, उन बातों को, उन फंडामेंटल्स को वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा इस जलवायु परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य, होप और रेजिलियंस की जिसका हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, पीपीएन कॉलेज से अनुरोध करूंगी कि वो प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान मैम का परिचय देने की करें। I am audible? Yes. I am audible? Yes. Okay. Professor Madhurima Pradhan ji is teaching since September 2005 till now in Lucknow University. She has completed her graduation and post-graduation from Kanpur University and PhD in Lucknow University. She is member of different associations like Indian Science Congress Association of India, National Academy of Psychology, Community Psychology Association of India, life member of Kabir Peace Mission, Bharati Counseling Psychology Association and Bharati Counseling Psychology Association, and Vice President UP State Chapter, National Association of Palliative Care for Ayush and Integrative Medicine. She has received many awards like Governor Award for developing a tool of spirituality for palliative care in 2017 and Best Paper Award in International Conference on Cognitive Behavior Intervention organized by IIM New Delhi. She has been taken many special lectures at university and other institutions. She has completed 2 research projects funded by UGC and NCERT. She has established Happy Thinking Laboratory at University of Lucknow. She is chairperson of Internal Complaint Committee, University of Lucknow. She has published 41 research papers in national and international journal and 11 papers published in reference book, and many papers are under process. 15 PhD students were enrolled, in which 7 PhD degrees were awarded and 8 are ongoing. She is a very devoted and committed teacher and researcher of repute. She is involved in research activities in the field of positive psychology, where we are happy to have here as resource person like Madhurima Pradhan. So, ma'am, please. बहुत बहुत नमस्कार और आभार मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं बधाई दूंगी पीपीएन कॉलेज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया यूएन साइकोलॉजी डे पे, और हम सबको ये मौका दिया कि हम अपने विचार आपके समक्ष रख पाएँ। और जैसा कि अभी हमारे जो पीपीएन कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत आभार दूंगी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई। और ब्रजभूषण सर जिन्होंने कि बहुत ही चीज़ें कवर कर ली हैं, मैं उन सब चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी। जैसे कि अभी बात हो रही है कि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये बहुत ही इंक्रीजिंगली हम उसके लिए अवेयर हो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है।
हम सब देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जब डेटा देखते हैं तो लगता है कि लास्ट डिकेड में ये सबसे वार्मेस्ट अर्थ थी, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना टेम्परेचर हाइक हुआ हो। और वेदर पैटर्न भी हम लोग देख रहे हैं बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। मार्च के महीने में जो इस बार गर्मी हम लोगों ने देखी तो हमें लग रहा है कि ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है एक इकोसिस्टम है, जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट को अफेक्ट करता है। तो अर्थ के किसी भी कोने पे कुछ भी हो रहा होता है तो हमें अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत अच्छे से आप सबने सुने, अभी डिस्कस किए। अब यहाँ पर बात आती है कि समस्या तो है, लेकिन चूंकि हम साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉब्लम फोकस थिंकिंग, so we just want to remain a part of the solution and not the problem. And the topic which has been chosen, in fact, really it was challenging for me as well to find the link between hope and resilience and climate change. So मैंने आभा जी से कहा भी कि कुछ इसका कॉन्सेप्ट नोट हो तो अगर आप भेजें, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, उन्होंने थोड़ा क्लियर किया तो फिर मैंने उसको सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया थोड़ा। और चूंकि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने होप और रेजिलियंस को उस तरह से देखा। और पॉजिटिव साइकोलॉजी में होप के 3 कंपोनेंट्स माने गए हैं, जिसमें कि गोल्स होने चाहिए, पाथवेज और एजेंसीज। तो जो हमने अभी बातें सुनी उससे हमें लगता है कि हमारे गोल्स तो क्लियर हैं कि हमें ऐसे गोल बनाने हैं कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन की वजह से, और जो हमारा ह्यूमन एक्शन है जिसमें कि हम बहुत तेजी से कोल एंड फ्यूल्स, ऑयल गैसेस, इनका हम लोग वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, भी बर्न कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल बना रहे हैं। तो हमें वो एमिशन को कम करना है, ये हमारा गोल है, दैट इज सेट। और दूसरा गोल हमारा ये है कि हमें जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हैं उसके साथ हमको अडेप्ट करना है। तो गोल हमारे सेट हो गए, अब हमें पाथवेज और एजेंसीज देखनी है। एजेंसीज की बात ब्रजभूषण सर ने बहुत अच्छे से बताई कि हमें वो विश्वास जगाना है, वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी लानी है कि लोग हमारी बात पर भरोसा करें कि ऐसा हो रहा है और आपको एफर्ट करना है क्योंकि ये आपके ही लिए है। बिकॉज वी हैव टू सेट सस्टेनेबल गोल्स। मतलब आज अगर हम जो भी पृथ्वी है उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल क्या होगा, तो हमें ये भी सोचना है। और जो हमारे लाइफ गोल्स हैं बहुत सस्टेनेबल होने हैं और हमें मोटिवेट करना है। साइकोलॉजिस्ट इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जब तक लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बात ये हुई, लेकिन जो पाथवेज की बात है तो मैंने थोड़ा देखा तो मुझे लगा कि जो यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की है, वो बहुत रे ऑफ होप हमें देती है और उसमें बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं जो कि ये बताते हैं कि उम्मीद की किरण है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो अब हो रहे हैं प्रोड्यूस और बढ़ रहे हैं। जो लो एमिशन टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट कम हो रही है। पॉलिसीज एंड लॉज बनाए जा रहे हैं, उनको एक्सपेंड किया जा रहा है जिससे कि जो क्लाइमेट मिटिगेशन है वो हो सके। इसके अलावा जो मिटिगेशन एफर्ट्स हैं जो अर्बन सिटीज़ में हो रहे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉकेबल एरियाज़ हो, ग्रीन एरियाज़ हो और जो रेन्यूएबल एनर्जी पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्डिंग्स को भी इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि हीट वेव्स के लिए वो रेजिस्टेंट हो, जैसे कि ग्रीन स्पेसेस या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है कुछ बिल्डिंग्स का इस तरह से बनाया जा रहा है जिसमें हाई रूफ्स की बात हो रही है, जिससे कि हम एक रेजिलियंस डेवलप करें हीट वेव्स के लिए। और बहुत सारे अर्बन एफर्ट्स जो हो रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट बनाने की बात हो रही है, ग्रीन स्पेसेस बनाने की बात हो रही है, तो ये हमें एक उम्मीद दिलाते हैं कि हाँ इसका समस्या का समाधान है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि विंड मिल्स बन रही हैं जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूव है टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर कॉम्पिटिटिव लो कार्बन इकोनॉमी। बहुत सारे सिटीजन्स भी हम देख रहे हैं जो आगे आ रहे हैं, जो कि इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जेन्युइन एफर्ट शुड बी मेड टू केयर अबाउट अवर नेचर। जूट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिकल्स जो है प्लांट फाइबर्स के बने आर्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं,
प्लांटिंग ट्रीज हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जगह मैं एक प्रोग्राम में रिसोर्स पर्सन थी, वहाँ पर उन्होंने बुके देने के बजाय एक ग्रीन कार्ड दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी पॉलिसी है कि जो भी गेस्ट आता है उसको वो ग्रीन कार्ड देते हैं और बजाय वो फ्लावर देने के उसके नाम का एक प्लांट सुंदरवन में इम्प्लांट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है जो कि ये दिखाता है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। यूथ में भी मैंने देखा काफ़ी उत्साह आया है, मतलब बहुत सारे यंग जनरेशन्स में भी इनिशिएटिव्स हुए हैं जिन्होंने प्लांट को इम्प्लांट करने या ग्रीन जोन बनाने के लिए इनिशिएटिव्स बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें उम्मीद दिलाती हैं कि हम इस चीज़ समस्या से निपट सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं जो कि कोस्टल फ्लडिंग को रोकने के लिए, उसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए, जैसे कि केरला में फ्लड रेजिस्टेंट हाउसेस की बात हो रही है कि मतलब हाउसेस जो है वो थोड़ा प्लेन से ऊपर उठ के बन रहे हैं जिससे कि फ्लड का इम्पैक्ट उन पर ना आए। रेजिलियंस टुवर्ड्स साइक्लोन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इज आल्सो बीइंग बिल्ट अप and it has been designed that the roof design should be changed. If the roof has a multiple slopes, it can stand well in the strong winds. तो ये प्रयास भी हो रहे हैं जिसमें कि हम साइक्लोन और स्ट्रॉन्ग विंड्स पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। कोल्ड्स पर भी नियंत्रण करने के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं जिसमें कि इस तरह की वॉल्स बनाने की बात हो रही है जिसमें कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं दिन में और शाम को या रात में वो थोड़ा सा कोल्ड हो जाती हैं। वाटर वॉल्स का भी एक ऑप्शन आया है जो कि हीट को रिस्टोर करती हैं और कोल्ड वेदर में हेल्प करती हैं। सो रूफ टॉप्स पर भी ग्रीन स्पेसेस बनने की बात हो रही है। तो ये बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जो कि हमें पाथवेज की ओर इंडिकेट करते हैं। लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट का रोल है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करें और साइकोलॉजी में हम स्पेशली अगर हम इंडियन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इंडियन साइकोलॉजी हर समस्या का समाधान देती है जिसमें कि एक समाधान ये निकल के आता है कि अगर हम कनेक्टेड फील करते हैं, इट मीन्स कि वी आर स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेडनेस ही एक स्पिरिचुअलिटी है जिसमें कि हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने दूसरों से जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, अपने इन्वायरमेंट से, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं और नेचर से कनेक्ट होते हैं। तो वो अगर हम कनेक्टेडनेस डेवलप करते हैं थ्रू इनवर्ड फोकस और अगर हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं और हमारा अस्तित्व है क्या, हु एम आई का आंसर अगर हम दे लेते हैं तो हम कहीं स्पिरिचुअल होते हैं और हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि हमें वातावरण के प्रति भी हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक रीसेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो कि डेवलप हो रही है दैट इज इकोथेरेपी। और इकोथेरेपी में हम लोग इस बात पर देखते हैं कि नेचर जो है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि एक बात आती है कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। जैसे कि ब्रह्मांड जो है वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है, तो यही पांचों तत्व हमारे शरीर में जो डिफरेंट हमारे चक्रास हैं जिसमें हमारी डिवाइन एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये पांचों तत्व हमारे अंदर भी हैं। तो अगर हम नेचर से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत हीलिंग पावर आती है, हमारी डिजीजेस से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, हमारे न केवल फिजिकल रिसोर्सेज बिल्डअप होते हैं बल्कि साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रिसोर्सेज बिल्डअप होते हैं, हमारी क्लीनिंग होती है। तो नेचर ने जो भी बीमारियां हैं उनका सलूशन भी नेचर ने दिया है। तो ये सलूशन तभी मिलेगा जब हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करेंगे और उसको बचाएंगे। तो वी हैव टू फोस्टर द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स एंड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ अवर प्लैनेट, बिकॉज ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं, लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, बस मोटिवेट करने की ज़रूरत है, एक एहसास दिलाने की ज़रूरत है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है उसको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा ओल्डर जनरेशन है शायद वो कहीं फेल हुआ है, तभी ये स्थिति आई है कि इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ है। तो यंग पीपल जो है दे आर फुल ऑफ एनर्जी, they are decision makers and they can take initiatives to contribute meaningfully for climate action, and they are the agents of change, and simply we have to scale up the efforts
and use our skills to accelerate the climate action. And we psychologists can play a very important role in it, and be a part of the solution, not the problem. So बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार यहाँ पर रखने का, प्रस्तुत करने का अवसर दिया, और एक नई दिशा से मुझे सोचने का मौका मिला. मैंने सोचा, जो भी मैं होप एंड रेजिलियंस पढ़ती थी उसको मैंने इससे जोड़ के सोचा, तो मुझे लगा वास्तव में सोल्यूशन है. और जो भी टाइटल आपने सेलेक्ट किया वो बहुत ही मीनिंगफुल है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद. थैंक यू मैम, थैंक यू. आपने बहुत ही समग्रता के साथ इस विषय पर अपना विचार रखा, और इंडियन साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, यहाँ तक कि न्यू इमर्जिंग ब्रांच इकोथेरेपी पर भी आपने चर्चा की, और बताया कि अगर मनोवैज्ञानिक के पास कोई समस्या है तो समाधान वो पहले रखते हैं अपने पास. बहुत ही समग्रता के साथ आपने प्रत्येक पहलू पर बहुत ही अच्छा विचार रखा. मुझे लगता है कि इसमें सारी बातें आ गई, जो जलवायु परिवर्तन, और खासतौर से जो अभी आपने बताया कि नेचर से अगर हम अपने को कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से हीलिंग होती है और किस तरह से रेजिलियंस, होप, सारी चीजें हम विकसित कर सकते हैं. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर रिजवाना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, से अनुरोध करूंगी कि वो प्रोफेसर अनुभूति दुबे मैम का परिचय देने का कृपा करें. डॉक्टर रिजवाना. आप अपना माइक ओपन कर लें डॉक्टर रिजवाना. Dr. Rizwana? I am audible? Yes, yes, yes. Huh? Yes. Now, yes. A very good evening to all of you. Here I am going to give brief introduction about Professor Anubhuti Dubey. Professor Anubhuti Dubey is the head and professor of psychology, DD University, Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur. He has been working there for the last 23 years. He has published 50 research papers in national and international journals, 29 chapters in different 2 edited books. He has written a book entitled Psychological Perspectives on Chronic Illness, 2012. She has also created 6 book series on mental health, Psychological Perspective, 2015, 2017, 2021. She is a co-editor of book Psyche of Asian Society, 2019. Her more recent book, published in 2019, is entitled Swasth Manovigyan in Hindi. She carried out an ICSSR project on psychological dynamics on health and illness of women in Eastern UP. 12 students have been awarded PhD degree under her supervision, and 6 students are still working. Her research interests include psychological introduction of chronically ill, groups, women, positive psychological resource coping and well-being. Her specialization include health psychology, positive psychology, qualitative research methods, and psychological counseling. She is also an editor of international journal Mind and Society. Welcome, ma'am. थैंक यू सो मच. मेरी आवाज मैं उम्मीद करती हूँ कि सुनाई दे रही होगी आप लोगों को. जी मैम. आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार. और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बार आभार कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण
व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। और जब आप अंतिम वक्ता होते हैं तो बहुत सारी बातें आपसे पहले के पूर्व वक्ता कुछ क्षेत्रों में कवर कर चुके होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन बातों को ना दोहराऊँ और जो आज का विषय है मैं उसको और हम लोग जो आज का विषय है वो मनोविज्ञान की दो बहुत स्ट्रांगली इमर्ज्ड जो विधाएं हैं, एरियाज हैं, उनसे उनका ब्लेंड है। एक है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और दूसरा है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो जो क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में एनवायरमेंट, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में हम लोग उस रिलेशनशिप के बारे में बहुत तरह से जो समाज मनोविज्ञान के या मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग थियरीज और मॉडल्स हैं, उनके आधार पर हम एनवायरमेंट और उसके इश्यूज को समझने की कोशिश करते रहे हैं। उसमें से एक जो प्रॉब्लम अभी क्या पिछले मतलब कुछ दशकों में जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे क्लास 5, 6, 7, 8, 9 के, तो अक्सर स्कूलों में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे या कोई ऐसे कॉम्पिटिशन है या पोस्टर है, तो उसमें अक्सर जो टॉपिक हुआ करते थे वो यही हुआ करते थे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था कि पोस्टर कॉम्पिटिशन है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक टॉपिक है, या डिबेट है तो क्लाइमेटिक चेंज की हम लोग बात करते थे कि या एयर पोल्यूशन, छोटी क्लासेस में तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब विषय हुआ करते थे, जिसपे तब हमें ये लगता था आज से 25-30 साल पहले कि शायद ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन हम लोगों में से आदरणीय प्रोफेसर MK सक्सेना साहब हैं, वो तो और लंबा बता पाएंगे कि उन्होंने किस एक बृहद जीवन में किस तरीके से हर 10 साल में क्लाइमेट को चेंज होते हुए पहले हम दूसरे लोगों से सुना करते थे, अब हम उसका पार्ट हो गए और हम उसको बेतहाशा महसूस कर रहे हैं। जो लोग बड़े शहरों में हैं, जैसे अभी प्रोफेसर ब्रजभूषण बात कर रहे थे कानपुर की, या जो दिल्ली से आता है, हम दिल्ली में अब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ में एक इंडेक्स दिखा रहता है, वो बताता है कि एयर क्वालिटी जो है वो खराब, बहुत खराब से लेकर के, और इस तरीके से वो एयर क्वालिटी की बात करते हैं, या वहाँ पे बिल्कुल सांस लेना दूभर है। एंड वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारी स्किन पे वो, अगर हम बाइक से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं तो हम अपनी स्किन पे वो काले धब्बे महसूस कर रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर के जो विषय है वो कि हम वो क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहीं दूर की बात नहीं है, वो हमारे आसपास, हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटित होना शुरू हो चुका है। और अब जो बात आदरणीय प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान जी कह रही थी कि मनोवैज्ञानिक के रूप में हम उसमें सोल्यूशन बेस्ड क्या कर सकते हैं। सोल्यूशन हमारे पास वहीं से हैं जहां पर हमारी जो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उन्हीं से हमारे सारे सोल्यूशंस भी निकलते हैं। और शायद यूएन को साइकोलॉजी डे की तरह सेलिब्रेट करने, और जो यूएन का आज का विषय है वो भी यही क्लाइमेट चेंज के बारे में है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं है कि मनोविज्ञान में, बेसिक साइकोलॉजी में हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसमें इतनी ताकत है कि हम शायद व्यवहार परिवर्तन के बारे में बात करें। और लेकिन मनोवैज्ञानिक के रूप में हम जब भी बात करेंगे तो वो आइसोलेशन में बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारे दायरे सीमित हैं। यद्यपि कि हम इंडिविजुअल के स्तर पर, सोशल स्तर पर, कम्युनिटी के स्तर पर, या इंटरपर्सनल अप्रोच, हमारे पास बहुत सारे अप्रोचेस हैं, उन अप्रोचेस के रूप में बात करते हैं। लेकिन जब हमें मेजर किसी बड़े परिवर्तन की तरफ लेकर के जाना है, तो पॉलिसी में चेंज लाने हैं, तो वहां पर हमें पॉलिसी मेकर्स के साथ अपने पास जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, हमारे जो मॉडल्स हैं, उनके साथ हमें लेकर के जाना पड़ेगा, जो कई बार हम मनोविज्ञान के लोग नहीं कर पाते हैं। तो एक जो मुझे लगता है कि अगर मनोविज्ञान को क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में कहीं एक लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि मनोवैज्ञानिकों के पास वो, उनके तर्कश में वो तीर हैं जिससे कि व्यवहार, कंज्यूमर, एक जो पूरा कंज्यूमर बिहेवियर का जो ब्रांच है वो इसी बात पर आधारित है कि कैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, या हम कैसे क्या डिस्प्ले करें कि वो मिले। जैसे उदाहरण के लिए बिहेवियरल चेंज और पर्यावरण की अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो मेरी मदर बताया करती हैं कि पहले जैसे ये जो आज हम जिसको टूथपेस्ट और डिफरेंट तरह के टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने बचपन में गाँव में बताती हैं कि दांत साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत बार वो जो
जो पेसा वाला नहीं, जिसको हम रोड़े वाला नमक कहते हैं, दरदरा नमक होता था, उसको पीस करके और उसको भी दांत साफ करने के लिए दातून में ब्रिसल्स के वो उसमें वो लगा करके इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे किया जाता था, या स्पेशली अगर दांत में दर्द हो तो आपको याद होगा कि कोलगेट ने और अलग कंपनियों ने, कई कंपनियों ने एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि ये टूथपेस्ट बेहतर क्यों है, क्योंकि इसमें नमक है। तो मेरी माँ हंसने लगी, उन्होंने कहा कि देखो, एक बार लोगों का पूरा व्यवहार परिवर्तित किया गया कि नमक वाला करना नुकसानदेह है, इसलिए अब आप अपने को शिफ्ट करिए, और एडवर्टाइजमेंट्स ने, कंपनीज ने जो है पूरा एक बिहेवियर शिफ्ट करा दिया। अब रिसर्चर ने सबने बताया कि नहीं, नमक तो भाई बहुत अच्छी चीज है, उसको दांत पे वो होगा तो दांत की कैविटीज को और वो बहुत सारी कमियों को दूर करेगा, तो वापस बिहेवियर चेंज में आ गए। तो वो एक ताकत है, और आप पूरे कंज्यूमर बिहेवियर पे अगर जाते, कंज्यूमर साइकोलॉजी, तो ऑल दैट इज बैक्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। सो अगर हम लोग इसी तरीके से अगर क्लाइमेट के बारे में भी बात करना चाहते हैं, तो हमें उन सारे, हमारे पास जैसे सोशल लर्निंग के हमारे पास जो भी टूल्स हैं, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हम एक बहुत बड़ा हिस्सा देखते हैं, वो इन्वायरमेंटल प्रॉम्प्ट्स और इन्वायरमेंटल एजुकेशन का है। पूरा इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो रीइंफोर्समेंट के सिद्धांतों पर आधारित है, कि आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो कौन कौन से बिहेवियर जो है वो मिटिगेट होंगे, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो कौन कौन से बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन होंगे। अभी जैसे प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान मैम बात कर रही थी कि वो कहीं गई तो उन्होंने एक ग्रीन कार्ड प्रोवाइड किया। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है बिहेवियर चेंज लाने का। जैसे अब हम लोग भी अपने वहां जैसे किसी को बुलाते हैं या कई जगहों पे जाते हैं, तो वो छोटे पॉट्स में कोई प्लांट्स जो है वो जनरली एक जेस्चर के रूप में दिया जाता है कि हम कुछ दे रहे हैं। या बहुत सारे लोग जो है वो बर्थडेज में या एनिवर्सरीज में वो प्लांटेशन को एक अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है, जो वो कि हम बस ये भी वो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ग्लास सीलिंग की बात करते हैं, कई बार उसी तरीके का होकर के रह जा रहा है कि हम मान ले रहे हैं कि हमने एक पौधा, सपोज मैंने किसी को उठा करके दे दिया, तो मैंने भी मान लिया कि पर्यावरण के प्रति या क्लाइमेट के प्रति मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, और सामने वाले ने भी वही मान लिया। क्योंकि हम एक कोजी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं, तो हम एसी के बिना नहीं रह सकते हैं, या हम थोड़ी देर पैदल नहीं चल सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल एस्पेक्ट है जिस पर जिस पर कि हमें बातचीत करने की जरूरत है, या जो मनोवैज्ञानिकों के दायरे में आने वाली जो चीजें हैं उसके उन संदर्भों में भी हमें जानने, सुनने, समझने की जरूरत है। जहां तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो एक विषय, जो एक हिस्सा जो क्लाइमेट चेंज का था, उस पर मैंने कुछ बातचीत की। दूसरा हिस्सा जो है वो ये कि होप और रेजिलियंस है या नहीं है। अगर हम रेजिलियंस की बात करें तो जैसे एक रिसर्चर हैं एन मैस्टेन, वो कहते हैं कि रेजिलियंस इज अ ऑर्डिनरी मैजिक। हम लोग बहुत रेजिलियंस को बहुत ऐसा बढ़ा चढ़ा करके समझने की कोशिश कई बार पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि रेजिलियंस इज एक साधारण लेकिन एक जादुई चीज है, और इट इज वो क्या है, वो हमें हमेशा बाउंस बैक, हमें हमारे अंदर वो जो सेंस ऑफ रेजिलियंस है वो हमें बाउंस बैक करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। अब दो चीजें हैं, देयर इज मिसफॉर्चून एंड वी वांट टू चेंज दैट। सो मिसफॉर्चून है, या बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में फंस गया, तो देयर इज मिसफॉर्चून कि वो भूकंप आ गया है, या बाढ़ आ गई है, या घर ढह गया है, कोई भी इस तरीके का, या जैसे हीट वेव्स में है या कोल्ड वेव्स में है, तो ये एक इन्वायरमेंटल मिसफॉर्चून है। या बहुत सारी जगहों पे हम जान रहे हैं, जैसे जकार्ता डूब रहा है, मालदीव्स डूब रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो ये मिसफॉर्चून है। लेकिन हम उसमें बहुत सारे लोगों के लिए मिसफॉर्चून भी है और उनको चेंज भी करना है। शायद हमारे आपके लिए हमको केवल परिवर्तन है, और उस परिवर्तन से कोप कैसे किया जाए, उससे कैसे निपटा जाए, और वापस अपने, तो वो स्किल्स भी हमें डेवलप करने की जरूरत है। अब वो स्किल्स हमारे अंदर कहाँ से आएंगे, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये होप और रेजिलियंस जो है, अभी प्रोफेसर मधुरिमा मैम बात कर रही थी कि यंग जो वो है उसको वो बहुत एनर्जेटिक है, उससे हमें काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है हमें उससे थोड़ा और पहले भी चले जाना चाहिए, कि जो आज का यंग है वो अगले 5, 7, 10 सालों के लिए यंग है, लेकिन जो आज का बच्चा है
उस बच्चे के सामने में क्लाइमेट की वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, क्लाइमेट की वजह से फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके सामने मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। आप जानते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर मेजर इश्यूज। छोटे छोटे बच्चों में ये समस्याएं दिखाई पड़ रही है। व्हाटएवर वी आर ईटिंग, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो उसमें कितना विटामिन मिनरल और बहुत सारी चीजें हैं वो हम भी नहीं जानते हैं। तो शायद हमें कुछ रेजिलियंस बिल्डिंग के अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स की भी जरूरत है। One thing that the kids should able to understand the environment and how to protect the environment, क्योंकि वहां पर अगर हम उनसे बहुत नेगेटिव बात करते तो उनके अंदर वो होप वाली बात शायद खत्म होती जाएगी, तो सोचेंगे कि हम एक ऐसी दुनिया में है जहां पर कि कहीं कुछ अच्छा है ही नहीं। तो एक इन्वायरमेंट के प्रति उनका एक फ्रेंडली बिहेवियर, जैसे जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हमारे एक रिलेटिव है, तो वो जब पूजा करते हैं तो पूजा में वो कहते हैं कि मैं जो फूल जहां पर मेरे बाग में लगा हुआ है, मैं प्रभु आपको वहीं से उसको अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि उसको उसकी जगह वही है। तो जो मात मैडम कह रही थी कि स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्टेडनेस, तो वो इस तरीके के बहुत सारे जेस्चर्स हैं जिनके द्वारा हम छोटे बच्चों में भी एक वो इन्वायरमेंट के प्रति कनेक्टेडनेस और इन्वायरमेंट के प्रति एक बेटर फ्यूचर की होप के बारे में बात कर सकते हैं। एंड वी कैन डेवलप अ सर्टेन प्रोग्राम्स फॉर किड्स टू बिल्ड रेजिलियंस। क्योंकि देखिए हम जिस इन्वायरमेंट में हैं वहां पर बहुत तरीके के ट्रॉमा या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं और वो होते रहेंगे। तो हम उससे कैसे बाउंस बैक करें, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, वो अटैचमेंट हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, अटैचमेंट टू एनीथिंग, अटैचमेंट टू रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट टू इन्वायरमेंट, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें करने की जरूरत है। हेल्दी इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, और ये सारा कुछ जो हम ऑलरेडी जानते हैं अबाउट सेल्फ रेगुलेशन। तो बीइंग साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल लेवल पर हम ये बात कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि हम सब लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा सेगमेंट जिस पर रिसर्च किया जाता है वो है कि वी हैव टू काइंड ऑफ माइंड्स, वन इज द रैशनल वन एंड अदर इज द इमोशनल वन। रैशनल माइंड ने सारा कुछ बता दिया कि क्लाइमेट में कैसे कैसे परिवर्तन आ गया है और हम किस मुहाने पे खड़े हुए हैं। अब इमोशनल माइंड को वो काम करना है कि हम कैसे अपने व्यवहार में, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन लाएं कि जिससे कि हम इसको जो क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से आ रहा है उसको हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकें और वापस उसको रिपेयर कर सकें। तो मुझे लगता है कि एज अ psychologist we have plenty of tools in our arsenal। हमारे तर्कश में बहुत सारे इस तरीके के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल हम राइटली सही ढंग से करें। और जैसा कि प्रोफेसर मधुरिमा मैम कह रही थी कि जब उनको ये टॉपिक दिया गया तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि हाउ दे आर कनेक्टेड। तो वो यही है कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक सेगमेंटेड तरीके से मनोवैज्ञानिक के रूप में सोच रहे होते हैं। अब हमें अपने उस दृष्टिकोण को भी बहुत ब्रॉडन करने की जरूरत है। और पूरा एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का तो पूरा डिसिप्लिन ही इंटरडिसिप्लिनरी फोकस के साथ बात करता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस तरह से सोचते हैं, बात करते हैं, और तो हम शायद अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के क्लाइमेट को और लोगों को होपफुल रखते हुए उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखेंगे तो लोग अपने वातावरण के साथ ज्यादा कनेक्टेड होंगे और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि मनोवैज्ञानिक के रूप में हम लोग शायद इस धारा को, इस बातचीत को यहीं तक सीमित न रख करके इसको कुछ और नर्चर करने की कोशिश करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स के डेवलप करने की कोशिश करेंगे, या कम से कम पॉलिसी मेकर्स तक इन बातों को पहुंचाने की भी कोशिश करें कि मनोवैज्ञानिकों के पास क्या क्या चीजें हैं जिसके द्वारा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू स्लो डाउन द क्लाइमेटिक चेंज एंड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से होप और रेजिलियंस को जलवायु परिवर्तन के संबंध में व्यक्त किया,
वो कनेक्ट किया वो वास्तव में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि अभी तक जो चर्चा हो रही थी उसमें कंज्यूमर बिहेवियर की बात आई थी, लेकिन आपने बताया कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक किसी व्यवहार, जैसे ब्रजभूषण सर ने भी कहा कि व्यवहार को समझकर और व्यवहार को बदलने के लिए और जो बिलीफ सिस्टम है उसको बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक अपनी सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। और आपने भी ये बताया कई एग्जाम्पल्स के द्वारा कि कैसे मनोवैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनसे बचने के लिए कैसे वो कम्युनिटी के आम जन के लोगों के बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं और उनको ये सोचने के लिए बता सकते हैं कि स्टिल देयर इज होप एंड रेजिलियंस। और रेजिलियंस आपने बताया कि बहुत साधारण सी चीज होती है लेकिन बहुत ही जादुई चीज होती है। अगर एक बार बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए या बड़ों को भी इस बारे में समझाया जाए तो वास्तव में ये किसी भी समस्या का अपने आप में हल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप तीनों लोग हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस सेशन आभा जी बात मैं कहना चाहता हूँ, इंटरवेन कर रहा हूँ आपको। जी सर बिल्कुल। हमने तीनों ऑडियंस को कंटिन्यू सुना है। स्टिल आई वाज देयर ऑन प्लेटफॉर्म सिंस लास्ट 1 आवर। मुझे लगता है एक पक्ष हमारे इन विद्वान साथियों से छूट गया है और जिस पक्ष को टच किया है आप तीनों ने, ऑलमोस्ट ब्रजभूषण जी से लेके और मैडम दुबे तक, मनोवैज्ञानिकों की भूमिका जितनी अधिक सोशलाइजेशन प्रोसेस में जो फ्रेमिंग ऑफ माइंडसेट होती है, जहां से कंज्यूमर बिहेवियर शुरू होता है, जहां से व्यक्ति की आदतों का निर्माण होता है, तो उन आदतों के निर्माण से व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है और व्यवहार से ही सारी चीजें तय होती हैं। आज जो भी कट थ्रोट कंपटीशन से लेकर के जो यूज ऑफ थिंग्स, चीजों का प्रयोग कैसे करते हैं हम, ये सब सामाजिकरण की प्रक्रिया से तय होता है। ये वाला पक्ष लगभग इन तीनों लोगों के लेक्चर में प्रारंभिक तौर पर सेट हुआ है। मेरा एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है ज्यादा प्रभावी, ये मैं एक समाजशास्त्री नाते कह रहा हूँ, एक बड़ी भूमिका हो सकती है और जो शायद बड़ी जरूरी है। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, सूखा हो या और भी कोई भी कारण रहा हो, बांधों का निर्माण हो, उनसे आई हुई बाढ़ हो, इन सब चीजों के बाद जो विस्थापन का दर्द होता है और विस्थापन के दर्द से उपजी हुई जो मानसिक अशांति होती है, उस मानसिक अशांति और भावनात्मक अस्थिरता के कारण एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हजारों लोग, लाखों लोग एक अजीब से इमोशनल ट्रॉमा का शिकार होते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिकों की उस जगह पर होती है, बनस्पत इसकी कि हम क्लाइमेटिक चेंज को रोकने में क्या निभा सकते हैं, वो तो पहला स्टेप है ही आपका, जो मैं समझता हूँ एज ए सोशलिस्ट सोशलाइजेशन के प्रोसेस में होना चाहिए। इसलिए कहता हूं मैं कि पर्यावरण का विषय कभी भी पर्यावरण वैज्ञानिकों, भूगोल या वनस्पति शास्त्र का विषय मात्र नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का उतना ही इंपॉर्टेंट विषय है। क्योंकि तांबे का सिक्का डालना तो गंगा में ठीक है, लेकिन आज जो गीलट का सिक्का डालते हैं जिसमें निकिल और कोबाल्ट ये सब रहता है, जिससे कैंसर हो रहा है, वो ठीक नहीं है। ये बताने वाला कौन है? पूजा के बाद के फूल जो है वो गंगा में नहीं डालने चाहिए, ये बताने वाला कौन है? ये सारी चीजें व्यवहार और आदतों परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ सोशलाइजेशन प्रोसेस में ही तय होते हैं, करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज जो होंगे, उनमें मनोवैज्ञानिक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी, महती होगी, और इस विषय पर साइकोलॉजिस्ट को और गंभीरता से काम करना चाहिए। ऐसा मैंने मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से डिस्प्लेस्ड लोगों या बड़े डैम से डिस्प्लेस्ड लोगों के बारे में स्टडीज के दौरान देखा है, मैंने स्वयं बहुत सारे अध्ययन किए हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ भूमिका प्रभावी रूप से सबको निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, बहुत ये बात सही है कि ये पक्ष मिस हो रहा था, और ये जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस और पोस्ट ट्रोमेटिक ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं कि जब इस तरह के नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं उसके बाद मनोवैज्ञानिकों के इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात सर आपने कही और बहुत ही प्रासंगिक है इस मंच पर। आभा जी, मैं प्रिंसिपल साहब की बात को हाँ ठीक है, हम लोग इस डिस्कशन में शायद इस बात को, चूंकि विषय जो था वो होप और रेजिलियंस पर फोकस जो था, तो शायद हम लोगों ने इस बारे में बात कम की। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने, हम लोग साइकोलॉजी के क्षेत्र में इस बारे में बहुत सारी रिसर्चेज है। जैसे जब
सुनामी आया था तो भारत में एक बहुत लंबा या जो भुवनेश्वर में जब उड़ीसा के कोस्ट पे 2000 में बहुत भीषण साइक्लोन आया और काफी लोग प्रभावित हुए। तो आप अगर जानते हो प्रोफेसर ए.के. मोहंती वहां पे हुआ करते थे उत्कल में, तो उन्होंने बहुत लंबा काम किया था और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। अमेरिका में 3 माइल आइसलैंड या चेरनोबिल की दुर्घटना, इन सब के रशिया में, इन सब के बाद से जो उसके जो इफेक्ट थे वो उस पर बहुत लंबे काम मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं और वर्ल्ड वाइड किए हैं। भारत में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा देर से हम लोग जागते हैं और वो फंड्स और रिसोर्सेज और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े मोड़े काम जो है वो कंटिन्यूअसली जारी हैं। तो ये एक पक्ष है जिस पर कि कंटिन्यूअस काम मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस तरह के प्रयास कंटिन्यूअस होने चाहिए और हमें अपनी तैयारी भी बना के रखनी चाहिए कि जैसे अभी कोविड आया था तो भी मनोवैज्ञानिकों की सशक्त भूमिका रही थी। बहुत सारी हेल्पलाइन सर्विसेज और डायरेक्ट इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स भी किए गए थे और मनोदशा को और बेहतर रखने के लिए। तो थैंक यू आप सभी का। और अब मैं समय चूंकि बहुत तेजी से आगे जा रहा है, इंटरैक्शन सेशन के तहत जो पूछना चाहें वो हमारे स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं हमारे स्पीकर से। सभी स्टीम्ड स्पीकर्स को बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैम ये जो डिस्कोर्स है उसको सुनने के बाद मेरा मन ज़्यादा प्रश्नों से भर गया है ना कि उत्तरों से। जब हम लोग होप एंड रिजिलियंस को क्लाइमेट चेंज जैसे एक विशाल टॉपिक से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं जिसके लिए शायद हमारा कितना आयाम है या भूमिका है वो प्रश्न के कटघरे में आती है। पहली चीज़ तो सर ये है कि जैसे वी हैव मोर माउथ्स टू फीड एंड दिस इज़ नॉट रिलेवेंट टू इंडिया बट अक्रॉस ग्लोब। नाउ अनूप सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, वो क्रिएट कहाँ से हो रहा है। तो जो अनुभूति मैम ने भी कहा कि वो फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं जो कि हमारी थॉट प्रोसेस है, बिहेवियर है, इमोशंस हैं। तो मैम कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि कमर्शलाइजेशन का है, कंज्यूमरिज्म का है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। और जब आज हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लगता है कि एज ए एल्डर वी हैव जस्ट ड्रास्टिकली फेल्ड एंड इट इज़ नो मोर लाइक एक्सेप्टेबल कि हम ये कहें कि हम कर चुके हैं, अब ये यूथ की जिम्मेदारी है। बिकॉज जितना मैं आसपास देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो प्रिविलेज वन है या जो एफ्लुएंट हैं वो ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं रेदर देन दोज हु आर सर्वाइविंग ऑन द मिगर मीन्स। एक मैम और भी पॉइंट है कि ये बात सही है कि आज की स्थिति में पॉलिसी मेकिंग, इंफ्रा, सोशल और द ग्रुप अवेयरनेस पे बहुत काम हो रहा है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी पे भी शायद हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल एक्शन की बात आती है तो हम फिर से ड्रास्टिकली फेल्ड हैं, चाहे वो हम इंडिविजुअल लेवल पे हों और चाहे वो हम संस्थाओं के रूप में हों। इसका एक वीरेंद्र अपना प्रश्न बहुत ही संक्षिप्त में पूछें वीरेंद्र। मैम एक्चुअली मेरा मन इस समय द्रवित हो गया है इस क्लाइमेट चेंज को सुनकर। तो मुझे लग रहा है कि इस समय मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है और इस चर्चा को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट क्या हम केवल मंचों से इस तरह का संबोधन कर रहे हैं या सच में हम व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने माटी के लिए या इस क्लाइमेट चेंज इशू के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर एज ए एल्डर आई थिंक वी वुड ऑल एग्री कि हम ड्रास्टिकली फेल्ड हुए हैं टू टीच आवर यंगर माइंड्स। और जब मैं मैम स्कूलिंग सिस्टम को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमने अभी ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है जहाँ पर हम उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे या उनको हम कंज्यूमरिज्म से बाहर लेके जाएंगे। तो ये जो मैम गैप है हम इसको कैसे पूरा करें? अनुभूति मैम आप बताना चाहेंगे क्या? सभी स्टीम्ड स्पीकर्स के लिए शायद एक प्रश्न है मेरा। नहीं वीरेंद्र जी, आपने जो बात कही है वो उस पे हम लोग शायद जितने भी लोग हैं उसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक आप बात करें कि हम किस तरीके से सोशलाइजेशन के प्रोसेस में चेंज कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें अगर हम ये जिम्मेदारी बांध रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि एज अ एल्डर हम फेल हो रहे हैं, तो वहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है कि हम
अपने यंग माइंड्स को कम से कम पेरेंटिंग के लेवल पर तो हम उसको बता पाए कि हमें क्या चीज़ें चाहे करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, या किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो केवल ऑर्नामेंटल नहीं कि एज अ पेरेंट हम बहुत एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बट एक्चुअली भी हमें ये सब करने की आवश्यकता है। दूसरा जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर के, जैसे एडवोकेसी और अवेयरनेस के अपने आसपास के एरिया से ही शुरू करें, तो वो भी एक कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर किए जाने वाले कुछ चेंजेस हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के प्रयास किए हैं और एक समय में वो प्रयास जो है वो फलीभूत होते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने एकदम बंजर जमीन को पेड़ों से भर दिया। तो ऐसा नहीं है कि यही तो होप और रेजिलियंस है। तो आप अगर बहुत दुखी हो रहे हैं कि हम लोग बहुत ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जहाँ पर उम्मीद की कोई किरण नहीं होती, वहीं से उम्मीद का फूटना ही उसी के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं कि हाँ, situations have become pathetic, but there is a ray of hope and we can bounce back by doing certain kind of things. May I add something, आभा जी? वीरेंद्र जी, आपकी बात सुन के मुझे बहुत उम्मीद लग रही है कि आप जैसे लोग अगर इसको इतनी संवेदनशीलता से समझ रहे हैं तो वास्तव में इम्प्रूवमेंट होगा। और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा, सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम है और मेन प्रॉब्लम है वैल्यू इरोजन की, जो हमारे समाज में मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आज हमारे जो सोशलाइजेशन पैटर्न है जिसमें कि कुछ मूल्य होने चाहिए, जैसे कि टेम्परेंस एंड ट्रांसेंडेंस, उसमें हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है उसमें हम कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे। हम आज चीज़ों को यूज एंड थ्रो वाली कल्चर में आ रहे हैं और हम चीज़ों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं जितना से ज़्यादा हम एक्यूमुलेट कर लेंगे उतने हम ज़्यादा सुखी होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अपनी आवश्यकताओं पर भी लगाम लगानी होगी। आज क्या कल्चर आ रहा है कि एक बार एक कपड़ा पहना उसको थ्रो कर दिया, फिर नया कपड़ा खरीदा, तो कितनी हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, कितना एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो एक वैल्यू बेस्ड सोशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है जिसमें हम ह्यूमन वैल्यूज सीखें और एक कनेक्टेडनेस डेवलप करें कि हम वास्तव में हैं क्या, हम दुनिया में क्यों आए हैं, कुछ देने के लिए आए, हम सिर्फ कंज्यूम करने के लिए नहीं आए हैं, हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो एक वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात अनुभूति जी ने की, तो ये सब चीज़ें उसी में ही आती हैं कि हम कैसे सोशलाइज कर रहे हैं बच्चों को शुरू से, उनमें जीवन मूल्य क्या सिखा रहे हैं। मतलब अतिरेक का होना हर जगह नुकसानदेह है, ये बात हम बच्चों को शायद नहीं सिखा पा रहे, और वो एक मटेरियलिस्टिक कल्चर, एक वेस्टर्नलाइज कल्चर की ओर भाग रहे हैं अंधी दौड़ में। तो हमें इसके बारे में बहुत कुछ सोचना होगा और बड़ी बड़ी बातों से नहीं, वास्तव में छोटी छोटी बातों से चेंजेस आएंगे। कि हम छोटे छोटे चेंजेस करें, अपने पर लगाम लगाएं, अपने परिवार पे लगाम लगाएं कि वो हम किस तरह से कंज्यूमरिज्म को छोड़ करके एक ट्रांसेंडेंस या हम एक जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो इस्टेब्लिश करें, जो हमारी एनर्जी है नेचर में जो है उससे हम जुड़ें, क्योंकि वही एनर्जी हमारे अंदर भी है। और अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वास्तव में छोटे छोटे प्रयासों की ज़रूरत है और हम साइकोलॉजिस्ट इसमें बहुत भूमिका निभा सकते हैं, छोटे छोटे इंटरवेंशन प्रोग्राम्स करके, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करके। तो बस मुझे इतना ही इसमें ऐड करना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बस 10 सेकंड में और कहूँगा कि मैम, जैसे अनुभूति मैम ने भी कहा कि 2 तरह के माइंड पे बहुत रिसर्च हुआ है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इमोशनल साइड है हमारा, मैं एक फौजी रहा हूँ तो शायद धरा के लिए वो पेन मेरे दिल में ज़्यादा धड़कता है, और अब एक गांव में आके सर्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी शहर का कंज्यूमरिज्म देख के थोड़ा सा और हृदय व्यतीत हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि इमोशनल जो माइंड हमारा है या सेंसिटिविटी है, आज वो इस लेवल पे पहुंच गई है, पेरेंटल ब्रिंगिंग अप भी है, इन्फोर्समेंट की भी कमी है कि कुछ भी देख के हमारा मन द्रवित नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू वीरेंद्र। मैं चाहूंगी इस मंच पर यदि कोई अन्य विद्यार्थी, कोई और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं। कोई और पूछना चाहे आप में से? एनीवन? मुझे लगता है कि अभी
काफी डिस्कशन जलवायु परिवर्तन और होप एंड रेजिलियंस को लेकर के हो चुका है और हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एनके सक्सेना सर इस मंच पर हैं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, क्योंकि यूएन साइकोलॉजी डे जो पहली बार सेलिब्रेट हुआ था वो सर ने अपने घर पे किया था और हम लोगों को एक प्रेरणा दी थी कि हम लोग प्रतिवर्ष इसको अपने महाविद्यालय में सेलिब्रेट करें। तो सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर एके सिंह सर, डॉक्टर सुमन, राजेश सर, नीना टंडन और भी बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धनंजय, डॉक्टर बीडी पांडे सर, बहुत से कॉलेज के सम्मानित शिक्षक साथी, सब लोग इस आज यूएन साइकोलॉजी डे से जुड़े और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। जैसा कि अनुभूति मैम ने बताया कि जिन चीजों को हम बहुत दूर का समझते थे, अब वो कैसे धीरे धीरे एक विकराल रूप में दिखाई पड़ रही हैं। तो उसके लिए हमें किस प्रकार से मनोसामाजिक, मानसिक और सोशियो कल्चरल इन सारे एस्पेक्ट को देखते हुए कैसे तैयारी करनी है या क्या हमारे इंटरवेंशंस होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही। ब्रजभूषण सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपना समय आज दिया हमारे विभाग और हमारे महाविद्यालय को। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान मैम, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी की हैं, एएनडी कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई की, तो ये और भी ज्यादा हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज आप हम लोगों के साथ स्पीकर के रूप में हैं और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को बताया। कनेक्टेडनेस की बात कही, नेचर थेरेपी, इको थेरेपी की बात कही और कैसे हम ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर भी विद्यमान हैं, इस चीज का भी एहसास कराया, याद दिलाया और बताया कि हम कैसे अपने को और ज्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। तो इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ब्रजभूषण सर का, अनुभूति दुबे मैम का और मधुरिमा प्रधान मैम का, प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने आज के दिन हैप्पीनेस और वेलबींग सेंटर को खोले जाने की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के बीच मेंटल हेल्थ को कैसे सिक्योर किया जाए, सोशल इमोशनल जो पक्ष है उनको कैसे हम लोग सार्थक रूप से आगे ले जा सके और उनको कैसे और अधिक उनके व्यक्तित्व निर्माण में पॉजिटिविटी को कैसे ले आए। अभी बिहेवियर स्किल्स की बात चल रही थी, वैल्यू बेस्ड बिहेवियर की बात चल रही थी। मधुरिमा मैम ने कहा कि हम लोगों के परिवार में या शुरू में जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है, व्यक्तित्व निर्माण का जो टाइम होता है, किस तरह से हम उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं और मूल्यों का बहुत ज्यादा ह्रास देखा जा रहा है, तो वो सब कैसे करना है, इस पर भी ये सेल अपनी दृष्टि बनाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपने डिपार्टमेंट के सभी साथियों का, डॉक्टर रश्मि मिश्रा, डॉक्टर रिजवाना जी और साथ ही हम सब से जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षकों का बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी। सर एनके सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पर या कुछ आप अपना टिप्पणी देना चाहेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही गई। मैं खाली एक दो चीजें जोड़ूंगा। एक, प्रोफेसर अनुभूति दुबे जी ने कहा कि मैंने कई पीरियड्स देखे होंगे क्लाइमेट चेंज के। बिल्कुल सही बात है। हम जब एनसीसी में थे 1952 में, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और एनसीसी में भी था, उस समय हम लोगों को वूलन क्लोथ पहनने पड़ते थे 15 अप्रैल से। 16 अप्रैल से हम लोग फिक्स डेट्स थी और ऑफिसेज में 15 अप्रैल को मतलब वो पंखों में पर जोड़े जाते थे और 15 अक्टूबर को निकाल लिए जाते थे। तो उस समय ये मान के चलते थे कि
15 अप्रैल और 15 अक्टूबर के बीच में सर्दी होगी और इसी में बरसात भी होगी और 15 अक्टूबर से सर्दी होगी। अब सर्दी जनवरी में, नवंबर के एंड में और दिसंबर और जनवरी में सर्दी आती है 1-2 महीने के लिए। तब हम लोगों को वूलन जो यूनिफॉर्म होती थी 15 अप्रैल तक पहननी पड़ती थी। तो ये बहुत से चेंजेस, कुछ बातें मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये जो होप और रेजिलियंस है, इंसिडेंटली मैं बताऊं, डॉक्टर एंड्रियास क्राफ्ट ने एक होप बैरोमीटर डेवलप किया है, उसमें मैं भी पार्टिसिपेंट था। I was also participant in the development of the hope barometer. तो होप भी 2 तरह की है, डिस्पोजिशनल होप जो एडल्ट होप स्केल से मेजर होती है, और एक एंड्रियास ने बनाई है परसीव्ड होप। तो डिस्पोजिशनल होप और परसीव्ड होप। और जहां तक रेजिलियंस की बात है, रेजिलियंस बेस्ट कैन बी टॉट थ्रू पॉजिटिव पेरेंटिंग। जितने भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो फैक्टर्स और वेरिएबल्स हैं, उसको मैं मानता हूं कि पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड पॉजिटिव स्कूलिंग थ्रू स्कूल फैमिली पार्टनरशिप्स and Castle model, which I have been advocating for the last so many years. आज के पेरेंट्स बच्चे के एकेडमिक्स पर बल देते हैं, उसकी सोशल इमोशनल लर्निंग, जिसमें कि ये सारे पैरामीटर जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के आ जाते हैं, सोशल इमोशनल लर्निंग, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो केवल एकेडमिक्स पे बात करते हैं, और जो कैसल मॉडल है, कोलैबोरेटिव एकेडमिक सोशल इमोशनल लर्निंग, इस पे बल देना चाहिए। एक बात और, इसमें रेजिलियंस भी है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चे को बोल्ड बना सकते हैं, बच्चे को फियरफुल बना सकते हैं। तो ये पेरेंटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस संदर्भ में है। और दूसरी बात इसमें है कि हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। अब हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होना है, टीना सिचुएशन है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना सिचुएशन मीन्स देयर इज नो अल्टरनेटिव, और इसमें चेंज होना है तो हम पहले से ही प्रोएक्टिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। एक चीज और है, ये नेशनल कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। कुछ बहुत जल्दी पैनिकी होते हैं, कुछ बिल्कुल पैनिकी नहीं होते हैं। जापानीज पीपल, they are most resilient people in the world. Not only resilient, they never go panicky. वहाँ पे कितने मतलब ये environmental hazards फेस करता है जापान, उतना कोई दूसरा देश नहीं फेस करता, लेकिन बिल्कुल काम रहते हैं, कोई पैनिकी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई भगदड़ नहीं। तो ये भी एक नेशनल कैरेक्टर का पार्ट है। जैसा प्रोफेसर सिंह जो पीपीएन के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बताया, बिल्कुल सही है। इसके लिए मतलब सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो सोशलाइजेशन है वो यानी बनाता है। हम अगर हमारा सोशल, हम इंडियंस बहुत जल्दी भगदड़ में, बहुत जल्दी पैनिक होते हैं, तो ये पैनिक होने की बात नहीं है। जो अगर एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं तो उनके लिए तो ये भी वो पैनिक ना हो, ये भी थ्रू प्रॉपर सोशलाइजेशन, जैसा सिंह साहब ने बताया, वो इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ है, जहाँ तक इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसी बात कही गई, मैं एग्री करता हूँ कि इसमें हमें इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। और इसके लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट जो पार्टिसिपेंट हैं वो सोशोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंड इन सम केसेस। अब बात एक आई थी, मैं सोच रहा था, मैं इसका अक्सर सोचा करता था, हमारे यहाँ कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, नमक और दातून का
स्थान, मैंने बचपन में दातुन और नमक से मैंने भी अपने दांत साफ करता था और हम मान के चलते बहुत है, लेकिन अब मैं भी उस पेस्ट पे आ गया। जब बीए में था तब आया हूँ उस पेस्ट पे। उसके पहले मैं भी दातुन और नमक इस्तेमाल करता था। लेकिन अगर कंज्यूमरिज्म का बढ़ावा नहीं होगा तो इंडिया ऐसा देश जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है और 1951 में हम 35 करोड़ थे, 34 करोड़ समथिंग, 34 करोड़ थे, आज करीब 140 करोड़ हैं। और उस समय हमारे कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर थे, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर था। और अब अगर ये चेंजेस ना हो, कंज्यूमरिज्म ना बढ़े, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट पोजीशन क्या होगी। मैं अक्सर सोचा करता हूँ। मैं जानता हूँ ये कंज्यूमरिज्म जो है, इसकी जो एक्सेस है, इसकी एक्सट्रीम जो है वो सही नहीं है, लेकिन अगर इसको हम बिल्कुल बंद कर दें तो कितने युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कितनी कंपनियां जहाँ पे कि ये है वो हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास और कोई आल्टर नहीं है। हमने पॉपुलेशन को प्रॉपरली प्लान नहीं किया है। 1951 में इंडिया वाज सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1681, तब हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी और 1941 में भी 40 करोड़ थी। और पार्टीशन के बाद जब 51 की जनगणना हुई तो हम लोग 34 करोड़ थे, 34 करोड़ समथिंग। और आज तो यानी 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारी बढ़ गई है। सबसे बड़ा फैक्टर तो क्लाइमेटिक चेंज का यही है, क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन किया है। अगर डिफॉरेस्टेशन ना करते तो कल्पना कीजिए कि 34 करोड़ से 140 करोड़ हम कैसे उनको एडजस्ट करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन हमारी मजबूरी थी। और लेकिन एक बहुत अच्छी बात है ये कि जब हिंदुस्तान की आबादी यानी 34-35 करोड़ थी 51 में, और मैं डीएवी कॉलेज हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट भी था, उस समय PL 480 का गेहूं आता था और दूसरे देशों से गेहूं आता था, क्योंकि हमारे हॉस्टल में 800 स्टूडेंट रहते थे, उनके लिए लिमिटेड गेहूं मिलता था। और मेस महाराज बाहर से ब्लैक से खरीद के बच्चों को खाना खिलाते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय हमारे 34 करोड़ को फीड करने की प्रॉब्लम थी और आज 140 करोड़ में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं फूड प्रोडक्ट में, दूसरों को दे रहे हैं। अभी 400 या 4000 टन हमने श्रीलंका को दिया और हम सरप्लस है, थैंक्स टू डॉक्टर स्वामीनाथन एंड हिज टीम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या ये किसी तरह से एडजस्ट हुआ है, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। बचपन में मैंने देखा है 43 का फैमिन जो था बंगाल का, जिसमें 3 लाख लोग मर गए थे। तो उस समय इतनी कम पॉपुलेशन पे, और उस समय भी हम पढ़ा करते थे 9th 10th और 11th 12th में कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो उस समय 40 करोड़ हमारी पॉपुलेशन प्रॉब्लम थी और आज 140 करोड़ पॉपुलेशन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं करता। लेकिन क्लाइमेट चेंज में ये जो और एक तरह से हम कहेंगे कि इंडिया जो है डेमोग्राफिक डेंजर स्पॉट्स में आ गया है। लाइक इंडोनेशिया, कुछ डेमोग्राफिक डेंजर स्पॉट्स हैं कि अगर फर्दर एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तो इसके लिए पॉपुलेशन चेक भी ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज का और पॉपुलेशन ग्रोथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। और रेजिलियंस के लिए भी बाउंसिंग बैक, ये भी बेस्ट कैन बी टॉट ड्यूरिंग पेरेंटिंग, हालांकि बाद में भी, क्योंकि लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी मॉडल, यहाँ भी हम कह सकते हैं हमारे 2 मॉडल्स हैं, क्लिनिक मॉडल एंड ग्रोथ मॉडल। क्लिनिक मॉडल में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कोई होपलेस है, कोई रेजिलियंस लो है,
उसको ट्रेनिंग काउंसलिंग से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज क्लिनिक मॉडल, बट आई बिलीव इन ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल है ये प्रॉब्लम होने ही ना पाए, और इसको हम सोशलाइजेशन, पेरेंटिंग एंड पॉजिटिव स्कूलिंग, इससे हम चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम चेक तब हो सकता है। तो कहने को तो बहुत है, लेकिन मैंने अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश की। आभा जी, थैंक यू सर, सो मच फॉर गिविंग मी चांस। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से ये जो जलवायु परिवर्तन है उसमें सोशलाइजेशन का क्या रोल है और पेरेंटिंग का क्या रोल है, किस तरह से हम पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू और भी कई इकाइयों को मिला जुला करके बहुत अच्छे प्रकार से इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। रेजिलियंस पर चर्चा हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बताया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हम और ज्यादा क्राइसिस और रिस्क पॉइंट पर जाएंगे, क्योंकि जलवायु में और भी ज्यादा परिवर्तन या एडवर्सिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिकों की, समाजशास्त्रियों की और सोशल साइंटिस्ट की ये भूमिका रहेगी कि वो कैसे पूर्व तैयारी करके इन सभी आने वाले समस्याओं का निपटारा कर सकें, उनसे अपने को सुरक्षित रख सकें और एक मानसिक मजबूती के साथ वो पूरे कम्युनिटी को आगे ले जा सके, क्योंकि सामाजिक मनोवैज्ञानिकों की साथ ही सामाजिक वैज्ञानिकों की इसमें एक अहम भूमिका साबित हो सकती है। आज का पैनल डिस्कशन बहुत ही सार्थक रहा। हमारे जितने भी शिक्षाविद हम लोगों से जुड़े रहे, उससे हमारे विद्यार्थियों का बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ, साथ ही उनको एक विजन मिली सोचने के लिए कि किस तरह से हमें आगे चल के अपने बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी इस ऑनलाइन मंच से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों, सम्मानित शिक्षकों, हम अपने शिक्षाविदों, खासतौर से प्रोफेसर ब्रजभूषण सर, प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान मैम एंड प्रोफेसर अनुभूति दुबे मैम, आप सबको मैं पुनः अभिवादन करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। और हम चाहेंगे कि हम सब कोलैबोरेट करके, चूंकि ये एक ऐसा मौका है कि इस तरह की चीजें कोलैबोरेटिव ढंग से कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अकेले तो कुछ भी संभव नहीं है। आप लोगों की जो आशीर्वाद है या जो हम लोगों का ज्ञान का आदान प्रदान है, उसकी आवश्यकता हमारे डिपार्टमेंट को हमेशा रहेगी। तो हम आगे भी कभी कोई प्रोजेक्ट या कभी कोई छोटा सा काम, इनिशिएटिव लेना चाहेंगे तो हमें आपकी मदद की आवश्यकता भविष्य में भी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग मिलजुल कर कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएं, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एनके सक्सेना सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज भी आप उतनी ही शिद्दत के साथ हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।